Okay. Yes. So today's logical reasoning session is all about syllogism. Till now, in the last session, we saw what is meant by Venn diagram. Syllogism is nothing but an application of Venn diagram. Okay, what does the Venn diagram tell us? Venn diagram tells us graphical representation via circles of relationship between different things. बराबर है? अगर दो चीजें completely related हो, तो how do we denote it in the Venn diagram? One circle into another circle, correct? दो सर्कल को एक दूसरे के अंदर हम लोग दो सर्कल्स बना लेते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है that these two things are completely related. If two things are partially related, तो हम लोग उसको कैसे डिनोट करते हैं वेन डायग्राम में? With the help of two intersecting circles. And yes, as you can see on the screen, this common part is nothing but what? Is nothing but what? The common part, the common region. This part is nothing but the common region. Partially related. Item 2. Yes. Further, syllogism. What is meant by this word syllogism? Syllogism means to draw conclusions. Means to draw conclusions. Now, if I say that logical reasoning session shall begin at 1, what does this mean? That I shall be logging in at 1 and I shall be conducting session of logical reasoning. Correct? मतलब हमने क्या किया? दिए हुए स्टेटमेंट का पोस्टमार्टम किया. हाँ या ना? उसको पूरा इन एंड आउट समझ लिया. करेक्ट? इसका कंक्लूजन क्या होता है? अगर मैं ग्रुप में पोस्ट करूं कि लॉजिकल रीजनिंग सेशन का ये आईडी है, ये पासवर्ड है, तो इसका कंक्लूजन क्या है? That all my students have to log in the session at 1. Yes or no? Yes, ma'am. No. Yes, ma'am. Yes. So, syllogism means drawing this conclusion. Venn diagram shows us the relationship, और इस रिलेशनशिप को हमें क्या करना है? सर्कल्स बना के वेन डायग्राम फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करके उसे कंक्लूजन्स ड्रॉ करना है. Okay, let's just watch a simple theory. Okay, before going to the theory, what are we going to do? We have to go to the mapping sheet, and in the mapping sheet write down syllogism, page number 258. Syllogism, page number 258. This mapping sheet is nothing but the index. Why is mapping sheet important? Because we have taken the chapters in the sequence of the difficulty level. Correct? कहां से शुरुआत किया था, कहां तक पहुंच गया, तो हम सिलोजिज्म में भी पहुंच गए, फिर भी हमें लॉजिकल रीजनिंग इजी लगता है. राइट? Shall we go ahead? First, now a quick small theory. Let's understand what is syllogism. Application of Venn diagram. It is a form of deductive reasoning where you arrive at a specific conclusion by examining two other premises or ideas. Syllogism derives from the Greek word syllogismos. What does syllogismos mean? Conclusion or inference. It contains three components: major premise, minor premise, and conclusion. Now, what is meant by major premise? What is meant by minor premise? Okay, if I say that all flowers are beautiful, and then if I say rose is a flower, I repeat, if I say that all flowers are beautiful, and I say rose is a flower. Now, all flowers are beautiful. Is it a more general and a more broad perspective statement? Yes or no? Yes or no? Yes, ma'am. Is it more on a generic level? Yes. It is more on a broadened level? Yes. So that is major premise. When I'm speaking of specifically that rose is a flower, what does this mean? That I'm talking about only one particular flower, that is rose. So it is minor premise. Do you understand? So you have a general statement, then you have a specific statement, and then with the help of the two statements, you have to draw what? Conclusion. And this entire procedure is nothing but syllogism. Clear?
everyone, as I've always told you, theory इतना समझ में नहीं आता जितना practical problem समझ में आता है. So directly we will be hopping on to the sample questions of syllogism. Yes. Oh, before going ahead, just 1 minute. Yes, it's a repetition of what we have already discussed about major premise and minor premise. Yes, sample questions. Okay, the first question. The first question on page number 261. Everybody along with me? Okay, let's start. Some actors are singers. All the singers are dancers. See, first, let's understand the question. Some actors are singers. जैसे प्रियंका चोपड़ा है, सलमान खान है, then आलिया भट्ट है. ये लोग क्या है? क्या है? They are actors, but they are singers. अब क्या बोला है उन्होंने? We are speaking of two things. One actor category, one singer category. यहाँ तक किसी को कोई doubt? So we are dealing with actors and we are dealing with singers. Okay, we are dealing with actors and we are dealing with singers. ठीक है, fine, understood. अब some बोला है, not all. तो बताओ, relationship complete है कि partial है? Partial. Relationship partial होगा, तो हमें circles में denote करते वक्त कैसे करना पड़ेगा? One into other. Intersections of the circle. Intersection. क्या मैं इसको ऐसे डिनोट करूंगी या मैं No, इसको मैं ऐसे डिनोट करूंगी? second one. Second one. Second one. Very good. हम लोग इसको सेकंड डिनोट करेंगे. ठीक है, तो एक एक्टर है, एक सिंगर है. ओके, अभी थर्ड समझिए. तो एक्टर्स और सिंगर्स का तो पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. ये है एक्टर्स. ओह आई एम सॉरी. यस, ये है एक्टर्स और ये है सिंगर्स. एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स हियर? No, ma'am. ओके, थर्ड क्या बोला है? नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है? ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स. मतलब वन न्यू थिंग हैज अगेन कम हियर, डांसर्स. यस और नो? Yes, ma'am. We have actors, we have singers, and we have dancers. Three things. So we need three circles. उसमें हमें relationship पता है कि actor और singer के बीच में partial relationship है. अब all singers are dancers. All singers are dancers. तो बताओ singers और dancers के बीच में relationship कैसा है? Complete की partial? Complete. अगर complete relationship है मतलब एक circle के अंदर दूसरा circle. Yes, ma'am. बाहर कौन सा सर्कल आएगा जो सबसे बड़ा है, जो बॉस है? अब बताओ. Singer. Singer. No, my dears. Dancers. All singers are dancers. मतलब सारे जो सिंगर्स हैं वो डांसर्स हैं. और डांसर्स में ऐसे भी तो कोई लोग हो सकते हैं जो नॉन सिंगर्स हैं. बराबर है ना? मतलब who's the boss baby here? Come on. Dancer. डांसर्स बड़े हैं कि सिंगर्स बड़े हैं? सोचो. Dancers. So singers और dancers का circle one inside the other आएगा, but बाहर वाला circle क्या होगा? broaden वाला, right? तो सबसे बड़ा है. तो अभी singers का circle तो अपने पास बना हुआ है, मतलब मैं यहाँ पे बनाऊंगी dancers का circle. हाँ या no? Everyone? Yes, ma'am. Anyone having any doubts with the Venn diagram? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अब इनका कंक्लूजन क्या है देखते हैं. इन्होंने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया है? इन्होंने इस प्रकार से कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि सम एक्टर्स आर डांसर्स. अब देखते हैं एक्टर्स और डांसर्स के बीच में क्या कोई इंटरसेक्शन है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Here is the intersection. So are they partially related? Yes, ma'am. Does the first conclusion hold true? Yes, it holds true. Yes, ma'am. Yes, it holds true. Now second, no singer is actor. क्या बोल रहे हैं? No singer is actor. अब सिंगर और एक्टर का सर्कल देखो. सिंगर और एक्टर का सर्कल, ये है एक्टर, ये है सिंगर. क्या इनके बीच में इंटरसेक्शन है? Yes, ma'am. इनमें कोई कॉमन पार्शियल रिलेशनशिप है? Yes, partial relationship. है, right? So यहाँ पे no singer is actor. Does it hold true? No, ma'am. So this No, second. ma'am. Understood? मतलब हमने Yes. क्वेश्चन. अब देखते हैं अपने पास ऑप्शन क्या क्या है. फर्स्ट ऑप्शन, Option. one conclusion follows. ठीक है. सेकंड,
only 2 conclusion follows, तो 2 तो अपना आंसर हो सकता है क्या? No, ma'am. ठीक है, 2 आंसर हमने स्क्रैप कर दिया. नेक्स्ट, either 1 or 2 follows. No, either 1 or 2 No, ma'am. पता ही है ना कि सेकंड डज नॉट फॉलो. neither 1 or 2 follows. नहीं, दोनों में से एक तो फॉलो होता ही है. करेक्ट? So what is the right answer? Option A. False. And और एक है, both 1 and 2 follow, both भी follow नहीं करते. So only one, that is conclusion 1 is following. So our right option is, A. A. anyone having any doubts here? No, ma'am. Ma'am. You know, I request you all to kindly jot this Venn diagrams in your notebooks properly, in your notebooks, not the textbook. Textbook को हमें फिर से वापस रिवाइज करना है, especially before our exams. Correct? जब आंसर उधर की उधर बना रहेगा तो अपना रिवीजन ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपना ध्यान बार-बार उस आंसर्स पे जाएगा. Fine, everyone? Shall we go ahead to the next question? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Question 2, page 262. All the harmoniums are instruments. All the harmoniums are instruments. ठीक है. तो अब पहले तो बताओ कि पहले स्टेटमेंट में how many things are there? Completely relation. There is a harmonium and there is an instrument. Correct? Yes, ma'am. अब इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है पहले तो वो बताओ. कंप्लीट की पार्शियल? Completely. Complete. कंप्लीट रिलेशन है, मतलब वन सर्कल इनटू अदर. ठीक है. बाहर वाला सर्कल विल बी द बॉस बेबी, राइट? टेल मी, who's the Yes. boss? Harmonium. Instrument. Instrument. All the harmoniums are instruments. इंस्ट्रूमेंट में हारमोनियम तो आता है और भी कुछ कुछ आ सकता है. So broad category is instrument. Instrument. This will be the instrument circle. फिर इसके बीच में क्या आएगा? Harmony. ठीक है. अब आगे, all the instruments are flutes. ठीक है. और एक आइटम आ गया यहाँ पे, flutes. करेक्ट? Yes, ma'am. ओके, अब बताओ रिलेशनशिप किसमें है? इंस्ट्रूमेंट और फ्लूट के बीच में. क्या बोला गया है? ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स. तो बताओ बॉस कौन है? रिलेशनशिप तो कंप्लीट है. अग्री? Flutes. Who's the boss? Flutes. Flutes. इंस्ट्रूमेंट के सर्कल के बाहर आएगा फ्लूट्स का सर्कल. Anyone having any doubts? Ma'am. Anyone having any doubts? No. Let's go ahead. Conclusions. All the flutes are instruments. चलो बताओ मुझे, क्या all the flutes instruments हैं? Ma'am. No dear. दो No. रिलेशनशिप यहाँ पे क्या है? रिलेशनशिप All यहाँ instruments are flutes. है. पर बॉस कौन है? फ्लूट बॉस. Fruits. सारे इंस्ट्रूमेंट्स ये फ्लूट है, बट सारे फ्लूट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे ये नेसेसरी है क्या? नहीं. No, ma'am. तो देखते हैं तो ये फ्लूट का सर्कल रहा और इसके बीच में ये रहा इंस्ट्रूमेंट का सर्कल. ये सर नो? Yes, ma'am. मतलब ये जो भी आइटम्स हैं ये क्या है? दीज आर नॉट इंस्ट्रूमेंट्स. और इंस्ट्रूमेंट्स के सर्कल में जो है दोज आर इंस्ट्रूमेंट्स. बराबर है? मतलब फ्लूट्स में दो कैटेगरी की चीजें हैं, one which are instruments, one which are not instruments. So can I say that all flutes are instruments? No, ma'am. No, ma'am. No. So first statement, first conclusion does not hold true. Okay? अब आगे देखते हैं. All the harmoniums are flutes. मतलब ये क्या है? ये हारमोनियम का सर्कल है और ये फ्लूट का सर्कल है. अब मुझे बताओ, क्या हारमोनियम का सर्कल पूरा की पूरा फ्लूट के अंदर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Statement holding true? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sorted? Everyone? Yes. Okay, अब देखते हैं अपने पास क्या क्या ऑप्शंस हैं. Only one conclusion follows. No, this is not right. Second conclusion follows. Right है, पर सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद हम करेक्ट आंसर चूज करेंगे. Third, either 1 or 2 follows. ये रॉन्ग है क्योंकि 1 तो फॉलो ही नहीं होता बिल्कुल ही. Neither 1 or 2 follows. ये भी करेक्ट नहीं है क्योंकि सेकंड फॉलो होता है. Both 1 or 2 follow. ये भी करेक्ट नहीं है क्योंकि दोनों फॉलो नहीं होते. So the correct answer is Option B. 2. only second conclusion. Anyone having any doubts? Ma'am. No, ma'am. Is it interesting? Yes, ma'am. Okay, let's go ahead to the next question. Question 3, page 263. Some mangoes are yellow
Okay, so here we are speaking of two things. Which are they? First is mango, and next is mangoes, and next is yellow. Yellow. Okay, yes, क्या बोला है? Some mangoes are yellow. So how's the relationship? Complete Partially related. Partially partial. related. Partial होगा तो हम लोग क्या करेंगे? Two circles will intersect each other. Say this is mango and this is yellow. Yellow. Correct? Yes, ma'am. Correct? मैं ना initial letters लिखना prefer करूंगी ताकि बाद में confusion ना हो जाए. Okay? This is mango. This is yellow. Okay? Now, the second statement is some tixo are mangoes. It's tixo and even few people pronounce that taixo. Okay, this is a kind of fruit. Okay, the third item is taixo. Right? Some taixo are mangoes. अब बताओ रिलेशनशिप किसके बीच में है? टैक्सो और मैंगो के बीच. पार्शियल है कि कंप्लीट है? Yes, ma'am. Partial. पार्शियल है तो मैंगो के सर्कल के साथ इंटरसेक्ट होगा टैक्सो का सर्कल. हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. करेक्ट. अब देखते हैं इन्होंने कंक्लूजन्स क्या ड्रॉ किए. सम मैंगोज आर ग्रीन. अब बताओ यहाँ पे ग्रीन का कोई रिलेशनशिप है क्या? No, ma'am. नो. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. फिर टैक्सो इज येलो. चलो बताओ टैक्सो का सर्कल और येलो का सर्कल कहीं पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है क्या? No, ma'am. तो कोई रिलेशनशिप है क्या? No, ma'am. No, ma'am. Statement also does not hold. Understanding? So आप बताओ so आप बताओ which option shall I choose? D. Option D. D. Neither one or two follows. Not to follow. Yes, ma'am. Shall we go Yes, to an ma'am. example? Yes, ma'am. Okay, question 4, page 263. Some ants are parrots. All the parrots are apples. क्या बोला है? Some ants are parrots and all the parrots are apples. ठीक है. अब so what are the items first? Let's write ants, parrots. Correct? पहले इन दोनों के बीच का रिलेशन देख लेते हैं. Some ants are parrots. मतलब partial relationship. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. अगर partial relationship है मतलब हम लोग क्या करेंगे इसको? Two circle intersect. Circles intersect. Very good. So this is ants, this is parrots. Next, all the parrots are apples. Yes. Just 1 minute. Yes, here we are. Apples. क्या बोला है? All the parrots are apples. Okay, मतलब बताओ complete relationship की partial relationship? Complete. Complete relationship. अब इससे boss कौन है? Parrot की apple? Apple. Apple. तो parrots के circle के पूरे बाहर आएगा apples. Yes or no? Yes, ma'am. करेक्ट. एप्पल्स मैंने पूरा क्यों लिखा क्योंकि एंड्स और एप्पल्स कहीं कंफ्यूज ना हो जाए. ए दोनों के इनिशियल लेटर्स हैं. राइट. अब देखते हैं इन्होंने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया है. ऑल द एप्पल्स आर पैरट्स. चलो क्या ऑल द एप्पल्स आर पैरट्स? Yes, No. ma'am. नो, बिल्कुल भी नहीं. अगर हम लोग सर्कल्स देखते हैं तो एप्पल के बीच में पैरट है. पैरट सारे ही पैरट एप्पल्स है. बट क्या सारे एप्पल्स पैरट्स हैं? No, ma'am. दिस डज नॉट होल्ड. आगे सम एंड्स आर एप्पल्स. Yes, ma'am. Yes. सब ants, अगर हम लोग देखें तो ये ants है और ये एप्पल का सर्कल है. तो are they intersecting? Yes. Yes, ma'am. Correct. Correct. Yes, तो क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है? So some Yes, ants. ma'am. Correct. Clear? Okay. अब मुझे बताओ which option will you choose? Option B. B. Option B. B. Okay. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, the last question of this chapter. Some papers are pens. So articles कौन से यहाँ पे papers and pens. अब बताओ क्या है? Some papers are pens. So partial relationship denoted by two intersecting circles.
ओके, दिस इज पेपर एंड दिस इज पेन। पूरा क्यों लिखा, क्योंकि पीपी कहीं कॉमन हमें कंफ्यूज ना हो जाए। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स। कम ऑन, सो नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज पेंसिल। अब मुझे बताओ रिलेशनशिप बिटवीन पेंसिल एंड पेन। Complete relationship. Complete. Who's the boss? Pen. Who's the boss? Pen. Pen is the boss। मतलब पेंसिल का सर्कल कहाँ पे आएगा? पेन के अंदर। Pen के अंदर। पेन के अंदर आएगा। अंदर। मानो Yes, ma'am. और सर्कल पेपर के साथ इंटरसेक्ट होगा कि नहीं? No, ma'am. क्यों नहीं? It is not related to each other. और पेपर के बीच के रिलेशनशिप के बारे में कुछ बोला ही नहीं, बराबर? Yes, ma'am. अब देखते हैं इन्होंने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया है। Some pens are pencils, yes or no? No, ma'am. Think. Some pens are Yes, ma'am. हाँ, जब और Yes, ma'am. देखिए कंप्लीट रिलेशनशिप है तो उसमें सारा ही कवर हो गया ना, सम भी आ गया और एंड और भी आ गया, हाँ या ना? सोचो क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रहे हैं? पूरे की पूरे intersect हो रहे हैं, बराबर है? मतलब does this hold true? Yes, this holds true. आगे, some pens and papers, yes or no? Yes, ma'am. क्या पेन और पेपर का सर्कल इंटरसेक्ट हो रहा है? Yes, Yes. ma'am. मतलब उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, second also hold true. So tell me, which option will you choose? E. E. Option E. And 2 follows. Yes or no? Yes. So E is the correct answer. So tell me, how do you find syllogism? How do you find syllogism? Interesting? Yes. Yes, ma'am. Very interesting. Yes, ma'am. Okay, we are starting with another very interesting chapter. Mirror image. What is meant by mirror image? Mirror image मतलब हम अपनी परछाई देखते हैं, राइट? अब परछाई हम दो चीजों में देखते हैं, एक तो वाटर इमेज भी होता है और एक मिरर इमेज भी होता है। व्हाट इज मेंट बाय वाटर इमेज? अगर हम खड़े हैं और नीचे पानी गिरा है तो क्या हम खुद को अपने आप को उसमें देख सकते हैं? Yes, Can ma'am. we see ourselves? Yes, we can see ourselves. Okay, पर अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, ओके, पानी जो होता है वो अपने पानी अगर जमीन पे गिरा हुआ है, अगर हम पानी में खुद की परछाई देखते हैं तो क्या दिखता है? बिल्कुल ही ऑपोजिट। Opposite. इफ वी आर हॉरिजॉन्टल तो हम क्या दिखते हैं पानी के इमेज में? वर्टिकल तो पानी के इमेज में हम लोग कैसे दिखते हैं? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, करेक्ट? पर अगर हम लोग आईने में खुद को देखें तो क्या हम अपना इमेज देख सकते हैं? देख सकते हैं, है या ना? Yes. तो अगर मैं मिरर इमेज खुद को देखूं, अगर मैं खुद को आईने में देखूं तो क्या होगा? That means अगर मैं खुद को आईने में देखूं तो बिल्कुल मेरा, अगर मैं वर्टिकल हूं तो मैं वर्टिकल दिखूंगी, यस और नो? अगर मैं हॉरिजॉन्टल हूं तो मैं मिरर में भी हॉरिजॉन्टल दिखूंगी। सिर्फ Yes, एक sir. चीज क्या है, अगर मिरर में हम किस प्रकार से दिखते हैं, टेल यू, इफ आई एम लाइक दिस तो मैं बिल्कुल कैसे दिखूंगी? हाँ या ना? Yes, sir. I repeat, if I'm standing like this तो मैं बिल्कुल ऐसे दिखूंगी। मतलब ये जो पोर्शन है, राइट, ये जो मेरा वन पार्ट ऑफ द पोर्शन है तो वो कैसे दिखेगा? पूरा की पूरा ऐसा उल्टा। मतलब यहाँ पे जो है वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ का पोर्शन बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. हाँ या ना? Let's see this. Yes, sir. पहले तो हम मैपिंग शीट में लिख लेते हैं, चलो फटाफट दौड़ के मैपिंग शीट, मिरर इमेज, पेज नंबर 291 लिख लिया? Yes, ma'am. ओके, चलो अब हम लोग अल्फाबेट में समझते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। यस यस, अगर हम लोग देखें ए, तो ए को हम लोग कैसे लिखते हैं? दिस इज हाउ वी राइट ए, राइट? अगर ये ए ऐसा है तो हमको ऐसे लिखना है, मतलब
इस पार्ट जो है ये अगर मिरर है तो ये ऐसा आएगा, करेक्ट, और ये उल्टा हो जाएगा। मैं इसे ए सेम ही दिखेगा, क्यों? क्योंकि वो सीधे तरीके से देखो या उल्टे तरीके से देखो वो सेम ही दिखता है। आई शो यू एन एग्जांपल विद बी। अगर बी हम ऐसा लिखते हैं तो ये आईने में कैसे दिखेगा? ये उल्टा। पोर्शन जो है वो ऐसा हो जाएगा, करेक्ट, मतलब क्या ये ऐसा दिखेगा? क्या ये ऐसा दिखेगा? Yes. ma'am. इफ आई से ऑफ सी, मिरर में कैसा दिखेगा? ये पोर्शन जो है वो ऐसे आ जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. इफ आई से पी, मिरर में कैसे दिखेगा? ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा और ये यहाँ पे ऐसे आएगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. इफ आई से क्यू, तो मिरर में कैसे दिखेगा? ये बिल्कुल जो है वो ऐसा हो जाएगा और ये सर्कल ऐसा आ जाएगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. अगर मैं एस, मिरर में कैसा दिखेगा सोचो तो क्या होगा? ये पॉइंट ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. Shall we solve the examples now? Ma'am. Okay, come to page number 291. Example number 1. Okay. अब ये इमेज हमें दिया है, मिरर इमेज, एवरीबॉडी विथ मी। मिरर इमेज अगर ऐसा हो तो हमें क्या दिखता है? बिल्कुल इस प्रकार से दिखता है, राइट? अगर ऐसा हो तो बिल्कुल इस प्रकार से दिखता है, मतलब इस पार्ट का जो है वो बिल्कुल शिफ्ट ऐसे शिफ्ट हो जाता है और इस ये पार्ट में जो है वो बिल्कुल यहाँ पे आ जाता है, मतलब ये पार्ट जो है वो ऐसा हो जाएगा, करेक्ट, और ये पार्ट जो है वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, राइट? Yes, ma'am. तो बताओ मुझे लॉजिकली कौन सा आंसर मैच होता है? तो B. B. एंड डी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ए और सी तो बिल्कुल ही स्क्रैप हो गया, राइट? राइट, अब Yes, ma'am. और डी ठीक से देखो, बी और डी, इसमें ये प्रॉपरली लिखा हुआ है पर यहाँ पे बिल्कुल ही क्या है? प्रॉपर, राइट? So which is the correct and apt answer? Yes, sir. Right answer. B. Do you all understand? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, let's go to the next example. Yes, अब हमें क्या दिया है? ये सीरीज दिया है। क्या दिया है हमें? ये सीरीज दिया है। इस सीरीज का हमें क्या करना है? मिरर इमेज करना है। नाउ कम ऑन एवरीबॉडी हियर, अगर हमें ऐसा पिक्चर दिया हो तो हम बिल्कुल ऐसा करेंगे, मतलब ये जो है हम कैसे स्टार्ट करेंगे? रिवर्स साइड से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्टिंग में दिया है वो बिल्कुल एंड में आ जाएगा और जो एंड में है वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. यस, तो चलो हम लोग पहले लिखते हैं, फिर लेट्स मैच दैट विद द अल्टरनेटिव्स गिवन टू अस। कम ऑन, तो पहले उल्टे साइड से लिखेंगे। एच को हम लोगों ने उल्टा लिख लिया, फिर 0, फिर एस को हमने उल्टा लिख लिया, राइट? फिर डी को हमने उल्टा लिख लिया, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर वी, फिर ए, फिर डी को हमने उल्टा लिख लिया, फिर वाई को हमने लिख लिया, फिर 3 को हमने उल्टा लिख लिया, फिर 1 को हमने उल्टा लिख लिया, फिर आर को भी हमने उल्टा लिख लिया, फिर ए एंड देन एच, करेक्ट एवरीवन? सो आपका आंसर रेडी है। अब आपको ये सिमिलर आंसर चारों अल्टरनेटिव्स में ढूंढना है। चलो बताओ कहां पे मैच होता है? Option C. 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 Option C. think, observe and then answer। चलो आप लोगों को कोई हड़बड़ी नहीं है, करेक्ट आंसर आना चाहिए। सी कौन बता Ma'am, रहा है? D. D. Ma'am, D one. कैसे बताया आप लोगों ने गड़बड़ में? Take your time, it is not that simple. Take your time, simple questions में अगर आप इस प्रकार से मार्क्स लूज करोगे, then can we meet our target? No, right? Yes, further. Next question. Okay, चलो next question. Find out the mirror image of the given option. चलो बताओ मुझे, मिरर इमेज करना है। ओके, तो अब ये ट्रायंगल है, हमने क्या देखा है? मिरर इमेज में ऐसा बिल्कुल इस प्रकार से हो जाएगा, राइट? मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा मिरर इमेज में, करेक्ट? ये ऐसे आएगा, यस और नो? Yes, ma'am. बराबर है। बीच का हार्ट तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा क्योंकि हार्ट तो चेंज नहीं होता। ओके, यस, you have to bear with me today, huh?
यस, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा ट्राइंगल, फिर इस ट्राइंगल को हम इस प्रकार से ज्वाइन कर लेंगे, हाँ या ना? यस और नो? Yes, sir. इस Yes, ट्राइंगल sir. को हम लोग ऐसे ज्वाइन कर लेंगे और फिर यहाँ पे आएगा एक ट्राइंगल और यहाँ पे आएगा, कैसे लाइन आएगा? कम ऑन टेल मी, क्या ये लाइन ऐसी आएंगी? क्योंकि ये मिरर इमेज है। Yes, ma'am. ऑप्शन इज मैचिंग। अब कंफ्यूजन है, सी तो बिल्कुल स्क्रैप हो गया, तो सी के पास देखने की जरूरत ही नहीं है। ए, सी और डी, सॉरी बी के पास देखने की जरूरत ही नहीं है। बताओ ए, सी और डी। A. A. Option A. लॉक कर दिया Yes, जाए? ma'am. यस, Yes, ma'am. करेक्ट आंसर। इजी है? Yes, ma'am. Yes, चलो sir. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसका मिरर इमेज, मिरर इमेज मतलब बिल्कुल इस प्रकार का ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट? मतलब यहाँ पे जो पोर्शन है, इस साइड में जो पोर्शन है वो बिल्कुल इस साइड आ जाएगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, sir. I'm miserably drawn. Yes. Option A, ma'am. My drawing. Okay, come on, tell me. फिर ये A. जो भी है वो बिल्कुल इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा, राइट? फिर यहाँ का जो सर्कल है वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर बीच का सर्कल है वो तो बीच में रहेगा, फिर यहाँ का सर्कल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट? फिर से ये जो सर्कल है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये सर्कल यहाँ पे रहेगा, एंड देन दिस सर्कल। कम ऑन टेल मी। Option A. A. श्योर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it easy? Yes. Yes. Let's go ahead further. The next question. Yes. चलो, मिरर इमेज, इस प्रकार का इमेज इस प्रकार हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। चलो, तो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, यस और नो? Yes, ma'am. और ये वाला पार्ट बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा। करेक्ट किया है मैंने? Yes, sir. ओके, लाइन में तो फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट से राइट जाओ या राइट से लेफ्ट जाओ, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है, करेक्ट? So tell me which option is the correct answer? C. Option B. B, ma'am. B. B is the correct answer. क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे सर्कल है बिल्कुल करेक्टली यहाँ पे लिया हुआ है, करेक्ट? Yes, ma'am. करेक्ट, और लाइंस बिल्कुल Correct, ma'am. तो B is the most apt answer. Shall we go ahead? Yes. Yes, ma'am. Okay, yes. अब हमें इसका मिरर इमेज मतलब बिल्कुल इस प्रकार से ऐसा हो जाएगा, राइट? मतलब यहाँ पे जो है वो बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, ये हाथ, ये पहले स्क्वायर बना लेती हूँ मैं यहाँ पे, राइट? फिर यहाँ का जो पोर्शन है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड हो जाएगा, हाँ या ना? राइट? Yes, ma'am. यहाँ का भी जो Yes, पोर्शन ma'am. है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, फिर Opposite. यहाँ का पोर्शन ऐसे हो जाएगा, राइट? Yes, ma'am. और यहाँ पे जो सर्कल है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड यहाँ पे चला जाएगा। बताओ, चेक चेक Opposite. चेक चेक। Option D. D1. डी के Option D. क्यों है? A में hands. आपका पोस्टर देखो, Yes, ma'am. Then, Yes, ma'am. yes, ma'am. the answer is D. D. Having any doubt? D. No, ma'am. Next. No, ma'am. ओके, चल इसका मिरर इमेज हमें बनाना है, जो इस कॉर्नर में है बिल्कुल ऑपोजिट साइड चला जाएगा, और जो यहाँ पे है वो बस क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। Opposite. C. यस, तो क्या ये इस प्रकार से हो जाएगा? क्या ये इस प्रकार हो जाएगा? और यहाँ पे Yes, sir. tell me, which is the apt answer? C. C. C, पक्का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Simple है, इसलिए I'm taking it quickly. Okay? Yes. Further. इसका हमें क्या करना है? मिरर इमेज मतलब इस प्रकार का ऐसा हो जाएगा, राइट? मतलब जो यहाँ पे है वो एंड में चला जाएगा,
मतलब और यहाँ जो एंड में है वो फर्स्ट हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, Yes, ma'am. Yes, मतलब हमको उल्टा सीरीज स्टार्ट करना है और वो भी उल्टे प्रकार से लिखना है, हाँ या ना? Yes, ma'am. ओके, तो चलो 2 को उल्टा लिखते हैं, फिर 1 को उल्टा लिख दिया, फिर Q को उल्टा लिख दिया, फिर 3 को उल्टा लिख 3. दिया, फिर 4 को उल्टा लिख दिया। फिर नेक्स्ट क्या है? S को उल्टा S. लिख दिया, yes, sir. फिर N को उल्टा लिख दिया, N. हमको उल्टा लिखने की आदत नहीं है ना, करेक्ट? N Yes, को उल्टा ma'am. लिख दिया, फिर A, A. चेक चेक, मैच आंसर। Option 2. Second. Second. That Second. is the correct answer. Is it easy? Yes. Yes, ma'am. Shall we go to the next question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next question. अब क्या करना है? सीरीज है, बराबर है, ये जो होता है बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, मतलब फर्स्ट जो है वो लास्ट चला जाएगा, लास्ट है वो फर्स्ट हो जाएगा, और वो भी उल्टे तरीके से, आया ना? यस, तो चलो स्टार्ट करते हैं, पीछे से उल्टा लिखते हुए। सो एम को उल्टा लिखो, चाहे इस साइड से लिखो चाहे इस साइड से लिखो, ये बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। टी भी बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा, एम भी बिल्कुल ऐसा दिखेगा, आई एम टी, वन The Bluetooth device is ready to pair. On कर. Kindly mute yourself. Yes. Then next R. Next I M. बताओ, correct option. C. C is the correct option. Do you get it, my dear students? Yes. Let's go Yeah. ahead further. चलो, सीरीज को क्या लिखेंगे? उल्टा लिखेंगे और पीछे से लिखेंगे और वो भी उल्टा लिखना स्टार्ट करेंगे। तो चलो A, फिर 4 को उल्टा लिखेंगे, फिर 1 को उल्टा लिखेंगे, 0, फिर चलो फिर 1 को उल्टा लिखेंगे, फिर N को उल्टा लिखेंगे, फिर I, फिर A, फिर R, A, T. Check, check. Answer. Fourth. What is the correct answer? Okay, second last question for the day. Geography को हमें उल्टा लिखना है, तो हम क्या करते हैं सीरीज में? पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं और वो भी उल्टे, राइट? सो Y, then H, then P को उल्टा, A, R को उल्टा, then G को हमने उल्टा लिखा, then O, then E को हमने उल्टा लिख दिया और G को चेक चेक। Fourth. Fourth, everybody? Yeah, first. First. ठीक से हर एक अल्फाबेट देखो, मेरा लिखने के पीछे क्या इंटेंशन है, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, अच्छे से हर लेटर क्रॉस चेक करके आपका ऑल्टरनेटिव चूज कर सको। कम ऑन, क्विकली आंसर 1 या 4? First one, ma'am. फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? थोड़ी सी हड़बड़ी, एक सिंपल से सवाल का जवाब पूरा रॉन्ग, ये फुल्ली फोकस करके हमें आंसर रिप्लाई करना है, चूज करना है ऑल्टरनेटिव। अंडरस्टैंडिंग? कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन एंड इट एक्चुअली स्टॉप्स फंक्शनिंग एट द राइट टाइम, बराबर है ना? इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग इन दिस एंटायर वर्ल्ड। चलो आगे, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। So today was a funny class, right? Painted. Painted को लिखेंगे हम लोग, उल्टे से लिखेंगे और वो भी उल्टे तरीके से। चलो स्टार्ट। D को उल्टा लिखा, E को उल्टा लिखा, T को उल्टा लिखा, D. N को उल्टा लिखा, फिर I, A, P. Tell me the answer.
Option 2. Option 2 is the correct answer. Bingo. So is it interesting? पता ही नहीं चलता LR का क्लास के 1 घंटा कब खत्म हो जाता है. Correct? Yes, ma'am. Yes, sir. Okay. So is it interesting? Is it nice? Yes, ma'am. And very, very easy. Very, very, very scoring. Okay. Thank you, my dear students.